Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication, to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform, will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. So we meet once again for yet another lecture which is based upon partnership accounts, rather final accounts. Okay, before I get started, quick introduction. जो हमारे आज के मित्र है, जो आज हमको क्वेश्चन सीखने में हमारी मदद करेगी, एक का नाम है मिस्टर नेनी, दूसरे का नाम है मिस्टर काने. और लेटर ऑन आप ये नोटिस करोगे थोड़ा अजीब, बट इनका रेशो जो है वो है 6:4. सम ऑफ यू, वेल नॉट सम ऑफ यू, एक्चुअली ऑल ऑफ यू कैन मेक दिस रेशो लिटिल छोटा. छोटा का मतलब है उसको कैंसिल कर सकते हो, तो वो 3:2 हो जाएगा. तो जहाँ पे मैं यूज़ करूँगा, मैं ओरिजिनल यूज़ करूँगा 6/10, 4/10. आप कर सकते हो, नहीं सर मैंने तो इसको 3:2 कर दिया, मैंने यूज़ किया 3/5, 2/5. इट्स ओके, बिकॉज द मल्टीप्लिकेशन एंड द डिविजन जहाँ पर भी ये रेशियो यूज होगा, इट विल कम द सेम. नाउ very important concept that I have to introduce today. Question is a different thing, उसका solution तो obviously करेंगे हम. Okay, कैसे जाना है वो सब explain कर दूंगा. But when you look at this question and when you look at particular items, what do I mean by particular items? थोड़ा नीचे आना, you get something called as provident fund investment, first item. थोड़ा नीचे आना, provident fund contribution, second item. थोड़ा और नीचे प्रोविडेंट फंड, थर्ड आइटम. थोड़ा और नीचे इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, चौथा आइटम. एवरी आइटम हैज प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड. सो द थिंग इज, सर प्रोविडेंट फंड क्या होता है, पहले वो तो एक्सप्लेन कर लो. यस, वेरी गुड क्वेश्चन जो मैंने खुद से ही पूछ लिया. व्हाट इज प्रोविडेंट फंड, पहले वो एक्सप्लेन करता हूँ सो दैट यू अंडरस्टैंड the different camera angles that are put on provident fund, and accordingly final accounts में इसको कहाँ पर लिखना चाहिए. because you may say, provident fund word तो वही है ना, लिखना तो वहीं पे होगा एक ही जगह पर. absolutely not. लगभग final accounts के सारे हिस्सों में provident fund को लिखा जाएगा. so I will read this question later on, discuss, mark everything later. firstly, प्रोविडेंट फंड का चक्कर क्या है, पहले वो तो एक्सप्लेन कर लूँ. ओके, सो विथ मी, ध्यान देना मेरे पीछे. सो बेसिकली कोई भी कंपनी में क्या होता है, वेल एक बॉस होता है, थोड़ा नाराज रहता है हमेशा, और एक एम्प्लॉई
कामगार, ओके, इनका नाम है वर्कर, एम्प्लॉय, कामगार, मिस्टर मूरकाम, मतलब इनसे ज़्यादा काम, वो है काम लो और ये है काम दो। अच्छा, जोक्स अपार्ट, इन एवरी कंपनी देयर इज समबडी हु इज कॉल्ड एज द बॉस, or you can say the management, and there is somebody who is called as the employee. It is the employee जो काम करता है, अपने सर्विसेज बॉस को देता है, और वो बॉस इन रिटर्न ये एम्प्लॉई को क्या देता है, पगार देता है, as simple as that. So that is how it works even for many of your parents. If your parents have their own दुकान, own business, तो मे भी ये सिचुएशन नहीं रहेगा, बट इफ दे गो टू अ कंपनी टू वर्क, अ होटल टू वर्क, अ हॉस्पिटल टू वर्क, अ स्कूल टू वर्क, अ कॉलेज टू वर्क, और एनी ऑफिस, देयर विल बी अ बॉस फॉर whom your mom and dad provide services and every month they get a salary. Now प्रोविडेंट फंड का कॉन्सेप्ट कहाँ पर आता है? वेल, गवर्नमेंट का ऐसा कहना है विच इज क्वाइट ट्रू। देखो भाई, वो जो बॉस है ना, और ये मेरे पीछे जो एम्प्लॉई है, आई रिपीट माई सेल्फ, दिस गाय बिसाइड्स मी, लेट मी डू वन थिंग, थोड़ा सीन चेंज करते हैं। ओके, गलत विंडो आ गया, ये बेटर है। ओके, तो जो भी होगा मेरे नीचे होगा। सो ऑन वन साइड यू हैव बिलो मी द बॉस एंड द अदर साइड यू हैव द एम्प्लॉई। एवरी मंथ द बॉस पेज द एम्प्लॉई क्या? पगार। कितना पगार देता है? मे बी 20,000, 10,000, 15,000। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है, नीचे देखना 20,000। ओके, गुड अमाउंट ऑफ सैलरी, नॉट बैड। हाँ, तो इन हैंड वेरी इंपॉर्टेंट कि बॉस ने बोला 20,000 तुम्हारा पगार, बट एम्प्लॉई को जब हाथ में पगार आता है तो 18,000 आता है। तो एम्प्लॉई पूछेगा, सर व्हाट इज दिस, आई हैव वर्कड फॉर 20,000, Why am I not receiving 20,000? क्यों नहीं मुझको 20,000 दिया जा रहा है? तो बॉस बोलेगा, देखो ऐसा है, आपके पगार से मैंने 2,000 रुपया काटा, और वो 2,000 गवर्नमेंट के कहने पे काटा, क्योंकि गवर्नमेंट बोलती है कि कंपनी में एक प्रोविडेंट फंड होना चाहिए। व्हाट इज फंड? कलेक्शन ऑफ मनी, जहाँ पे पैसा जमा किया जाता है। किसका पैसा जहाँ पे जमा हो रहा है? वर्कर का पैसा जमा हो रहा है। तो वो जो 2,000 रुपया काटा, वो 2,000 रुपया कहां पर जाएगा? ये जो नीचे वाला प्रोविडेंट फंड है ना, उसमें जाएगा। सो एम्प्लॉई बॉस को पूछेगा, क्यों आप क्यों मेरा 2,000 रुपया काट रहे हो? तो बॉस बोलेगा, देखो भाई, ये सरकार, वो जो सरकार है ना नीचे, ये उनका कानून है कि भाई एम्प्लॉइज को पूरा पगार मत दो, थोड़ा हिस्सा काटो, और उसको कहां पर जमा करो? उसको प्रोविडेंट फंड में जमा करो। नाउ द एम्प्लॉई, दैट मीन्स योर मम्मा पापा, विल बी एंग्री। क्यों? यू डोंट कट माई मनी, पूरा पगार दो, मैंने पूरा काम किया है। तो क्या समझाया जाता है एम्प्लॉई को? ओके, कामगार को, देखो भाई, आपका 2,000 कटा, कहाँ पे गया? प्रोविडेंट फंड के अंदर। बट प्लीज नोट, बॉस को भी अपनी जेब से उतना ही कंट्रीब्यूशन, योगदान, कंट्रीब्यूशन आपके प्रोविडेंट फंड में करना पड़ा है। प्लीज अंडरस्टैंड दैट मीन्स इन 1 मंथ तो जो प्रोविडेंट फंड नीचे है ना, उसमें एम्प्लॉय के जेब से पगार से 2,000 गया, उसको मैच किया बॉस ने, उसने 2,000 डाला, तो एक्चुअली जमा कितना हो गया? 4,000। नाउ इज दिस एनीथिंग लेस देन अ मिरेकल? क्योंकि भाई आजकल ऐसा कौन सा इन्वेस्टमेंट है जहाँ पे बोलने के लिए 2 का 4, 2 का 4, 2 का 4 होता है, बट यहाँ पे एक्चुअली 2 का 4 हो रहा है। सो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोविडेंट फंड? प्रोविडेंट फंड में मनी इज कलेक्टेड फॉर द फ्यूचर ऑफ द एम्प्लॉय, बिकॉज दिस एम्प्लॉय जो मेरे नीचे है, मिस्टर मूरकाम, he will not be young always, your parents will not be young always, they will get old and they will have to retire. When they retire, retirement की बात का क्या? Very important. रिटायरमेंट की बात का मतलब एक ज़माना था जहाँ पे मम्मी डैडी अपने बेटे बेटियों पे क्या करते थे? डिपेंड करते थे। नहीं, जब हम बूढ़े हो जाएंगे ना, हमारे बच्चे हमको देख लेंगे। आजकल कोई गारंटी नहीं है। यू सी, यू हियर द वर्स्ट ऑफ स्टोरीज as far as parents neglect is concerned. So you can't trust. You can't unfortunately trust your own blood. खुद के खून के जो बच्चे ना, उन पे यकीन नहीं कर सकते। तो what is the boss and the government doing? एक काम करते, आप जब बूढ़े हो जाओगे ना, आपके लिए एक धनराशि, एक कलेक्शन करते हैं,
उसको कहते हैं प्रोविडेंट फंड. नाउ प्लीज ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू गाइज, यू ऑल पुट द हैट ऑफ द बॉस. आप लोग बॉस के नजर से सोचो कि आपके पास एम्प्लॉइज है, आप पगार काट रहे हो थोड़ा सा और प्रोविडेंट फंड में डाल रहे हो, और वही प्रोविडेंट फंड में आप अपनी जेब से, प्लीज नोट, कंट्रीब्यूट भी कर रहे हो. जितना काट रहे हो उतना आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो. नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड लेटर, 1-2 मिनट के बाद, कि ये प्रोविडेंट फंड जो नीचे है ना, ये क्या है? एसेट, लाइबिलिटी, पीएनएल, ट्रेडिंग, क्या है? ये कंट्रीब्यूशन जो नीचे है वो क्या है? पीएनएल, ट्रेडिंग, एसेट, लाइबिलिटी. नाउ प्लीज नोट, 4,000 रुपया प्रोविडेंट फंड के अंदर गया, बट इज योर एम्प्लॉय रिटायरिंग टुडे? नो. मे बी वो तो 10 साल काम करेगा, 15 साल काम करेगा, तो तब तक हर महीने ये प्रोविडेंट फंड ग्रो होगा, ग्रो होगा, ग्रो होगा. तो व्हाट डज द बॉस डू? जो टॉप के लोग हैं ना, मैनेजमेंट, उन लोग ये प्रोविडेंट फंड के पैसे को, बिकॉज द वर्कर इज नॉट रिटायरिंग टुमारो, इन्वेस्ट कर देते हैं. तो यही 4,000 वो लेट्स से कोई बैंक में डालेंगे, तो ये बन जाता है प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट. एंड द मोमेंट यू इन्वेस्ट मनी, यू डोंट कीप इट इन द तिजोरी, यू इन्वेस्ट मनी, वो पैसे पे पैसा ऑटोमेटिकली कमाना शुरू हो जाता है. मतलब क्या मिलता है? इंटरेस्ट. दिस इज द लास्ट आइटम, इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट. आई जस्ट टुक एन एग्जाम्पल. जो मैंने नंबर्स लिए हैं ना, 2,000, 4,000, इंटरेस्ट का 4, ये 1 मिनट, आई अंडरस्टैंड थोड़ा, कैन आई शिफ्ट? ओके, कम बैक टू माई पोजिशन. तो वो ऊपर आपको 400 दिखेगा. व्हाट डू यू राइट नाउ हैव टू फिगर आउट? दिस प्रोविडेंट फंड इज व्हाट? लेट मी टेल यू, यू आर द बॉस, यू आर नॉट मिस्टर मोरकम. आप एम्प्लॉय नहीं हो, आप बॉस हो. आपको आपके दिमाग में पता है क्या? आफ्टर 10 years, 5 years, 15 years, this employee, he will retire. I have to pay him his money. Provident fund is not बॉस का पैसा. प्रोविडेंट फंड में जो जमा हो रहा है वो एम्प्लॉई के लिए हो रहा है. Therefore, provident fund for the boss is what? Liability, payable. Please note. हाँ, सेकेंड, बॉस को अपनी जेब से हर महीने कंट्रीब्यूट करना पड़ रहा है, बिकॉज इट इज लॉ, कानून, इट इज द लॉ ऑफ द लैंड. सरकार ने बना दिया है, फॉलो करना है, विदर इट इज अ टाटा, अ विप्रो, इन्फोसिस, एनी कंपनी, द बॉस हैज टू फॉलो द लॉ ऑफ द लैंड. तो उसको तो 2,000 और डिपेंड्स अपॉन डिफरेंट एम्प्लॉइज, कॉन्ट्रीब्यूशन अलग अलग होता है, उसका तो खर्चा हो रहा है. प्रोडक्शन के साथ में कोई कनेक्शन नहीं है. इसके लिए इट गोज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड, प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशन, डेबिट साइड, खर्चा नॉर्मल. इन्वेस्टमेंट क्या हो जाता है? एसेट, द प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, बिकॉज द एम्प्लॉय बिहाइंड मी वो थोड़ी कल रिटायर कर रहा है, तो वो पैसा जो करोड़ों 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 में होता है, बिकॉज बिग कंपनीज हैव गॉट thousands of employees means crores of salary and crores of provident fund. तो वो इन्वेस्ट करते हैं ना, तब तक till the time it is an investment, it is considered as an asset. Okay, and the interest that is earned on this is not the boss's income. बॉस नहीं बोल सकता है मेरा कमाई है, इंटरेस्ट नहीं. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बॉस का कमाई है, पीएनएल अकाउंट, बट नॉट इंटरेस्ट ऑन पीएफ इन्वेस्टमेंट. व्हाई? बिकॉज दैट वर्ड कम्स पीएफ, प्रोविडेंट फंड. पीएफ किसका पैसा है? एम्प्लॉई का, इसका. हाँ, तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट जमा हुआ है वो किसका होगा? वो भी तो इसका होगा. प्लीज नोट, इट्स अ लिटिल बिट ट्रिकी. प्रोविडेंट फंड ओरिजिनली ये 4,000 किसका था? एम्प्लॉई का, लाइबिलिटी. एंड द मनी दैट इज अर्नड ऑन दिस 4,000 कितना भी होगा, 200, 300, 400, 100, 500, कितना भी रहेगा, वो भी इसका है. Therefore, the above interest that you see, interest on investment is income, but interest on PF investment वो income नहीं है, वो है liability. Please note that, because the provident fund is not the boss's money, वो तो employee का है. तो उसके that means जब ये retire होगा ना, when your mama papa retires, they will ask the boss two things: give me my provident fund, give me my interest on provident fund, because both are payable to them. Please note today's lecture, these 4 items, and even in the next lecture, almost these 4 items will be asked. This is the
एक्सप्लेनेशन कि कौन सा एसेट है, कौन सा लाइबिलिटी है, कौन सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है. ओके, होपफुली मैंने ये थोड़ा समझा दिया. गुड थिंग अबाउट दिस इज व्हाट, दिस इज अ वेरी प्रैक्टिकल थिंग फॉर योर मॉम एंड डैड. इफ यू आस्क देम कि मॉम एंड डैड व्हाट इज योर सैलरी, एंड इफ दे एक्चुअली टेल यू, and if you further ask them, do you receive that, they will say no, we don't get. The boss deducts, what he deducts, one of the items he deducts is called as provident fund. उसका गलती नहीं है, because it is the law of the land. जहाँ पर हम रहते हैं ये वहाँ का कानून है. ओके, एंड इट्स अ गुड कानून, क्योंकि whenever they retire employee, उनके बुढ़ापे के बारे में ये सोच के बनाया गया है. ओके, सो आई होप बाकी सारे मार्किंग्स आपको समझ में आ चुके हैं. अभी ये सिम हम हमारे क्वेश्चन में कर लेते हैं. सो लेट मी गेट स्टार्टेड विद द मार्किंग ऑफ द क्वेश्चन. थोड़ा फास्ट में करता हूँ. इट्स एन इलस्ट्रेशन, आपके टेक्स्ट बुक में आपको मिल जाएगा. नेनी एंड कान्या पार्टनर्स, ओके, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 6:4. ओके, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड adjustments given below, prepare trading profit and loss account for the year ended and the balance sheet 31st March 2019. कॅपिटल कुठे जाणार, पार्टनर्स कॅपिटलमध्ये. त्यानंतर डेटर्स ॲसेट, क्रेडिटर्स लाइबिलिटी, रेंट ये ऑफिस का है बट इसमें एक हिडन एडजस्टमेंट है. हाँ, तो आप स्टार मार्क करो. स्टॉक, दिस इज ओपनिंग स्टॉक मतलब ट्रेडिंग. प्रेमाइसेस, प्रॉपर्टी मतलब एसेट. सैलरी P&L, डिस्काउंट P&L. प्लीज नोट डिस्काउंट इज ऑन बोथ द साइड्स, डेबिट and credit, no problem. In P&L we will put it in the debit and we will put it in the credit. हाँ, motor vehicle asset, sales trading, purchases trading, wages trading, office expenses, office का खर्चा P&L, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये ओवरड्राफ्ट इज लाइक अ लोन, कर्जा, तो कभी ना कभी तो देना पड़ेगा ना. लाइबिलिटी. रिटर्न्स, प्लीज नोट रिटर्न्स दोनों तरफ है. अगेन वेरी गुड क्वेश्चन, क्रॉस कनेक्शन. डेबिट का रिटर्न क्रेडिट में मतलब सेल्स रिटर्न, क्रेडिट का रिटर्न डेबिट में मतलब परचेज रिटर्न. आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू दिस, क्रॉस कनेक्शन. एंड मतलब कुछ नया नहीं होगा, वो सेम चीज़ आपको पूरे चैप्टर के लिए फॉलो करना है. सो इट इज़ ट्रेडिंग. हाँ, देन आज का जो VIP मुद्दा था, ओके, एंड व्हाट वाज दैट VIP मुद्दा? वेल, इट वाज अबाउट प्रोविडेंट फंड. तो ये जो प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट है ये तो एसेट है, कैश इन हैंड एसेट है, बट ये जो कॉन्ट्रीब्यूशन है ये P&L है, खर्चा. प्रोविडेंट फंड लाइबिलिटी क्योंकि वो वर्कर का पैसा है, कैश एट बैंक एसेट, और ये जो इंटरेस्ट है बट PF इन्वेस्टमेंट पे, तो ये अपने पैसे पे नहीं है, ये तो एम्प्लॉय के पैसे पे है. हाँ, तो फिर वो भी बन जाता है लाइबिलिटी. ड्रॉइंग्स हम लोग पार्टनर्स कैपिटल में लिखेंगे. बैड डेप हमारा जो फॉर्मूला है, इनफैक्ट RDD जो उसके नीचे है, दोनों P&L में जाएगा. एडजस्टमेंट्स मेरे ऊपर दिए हैं. पहला क्लोजिंग स्टॉक है, वेरी सिंपल, मेक बंदा एडजस्टमेंट, नो मार्किंग्स टू बी डन. सेकेंड, आउटस्टैंडिंग, वेजेस को 1 स्टार होगा, सैलरीज को 1 स्टार होगा. तीसरा, डेप्रीसिएट मोटर व्हीकल को 1 स्टार. चौथा, राइट ऑफ बैड डेप. कौन सा बैड डेप? एडिशनल बैड डेप, तो डेटर को स्टार करो. एंड प्रोवाइड फॉर RDD. कौन सा RDD? न्यू RDD. फिर से डेटर्स को, बिकॉज यू हैव अ डाउट ऑन डेटर्स. फिफ्थ, कानी. कौन है? ये वाला कानी नहीं, ओके, इज द बॉस, वन ऑफ द बॉसेस. ओके, विड्रू गुड्स ऑफ 6,000 फॉर हिज पर्सनल यूज, अपने लिए, अपने घर वालों के लिए. दिस इज कॉल्ड एज ड्रॉइंग्स. गुड्स कहाँ से विड्रॉ करते हो? गोदाउन से. सो दिस इज एन एडजस्टमेंट जहाँ पे आपको कोई मार्किंग नहीं करना. ओके, 4 आइटम्स वो इंपॉर्टेंट. एक हिडन एडजस्टमेंट है ऑफ रेंट. Otherwise, this is a very, very decent and manageable question. The only reason I am doing this, very simple, to explain these 4 items and to show it to you कि कहाँ पे और इसको किस तरह लिखना है. So, let's get started. थोड़ा स्पीड फास्ट रहेगा क्योंकि जो मैंने ऑलरेडी पुराना किया है आपको पता है. हाँ, जो नया है वहाँ पे मैं थोड़ा मेरा गियर ड्रॉप कर दूंगा और थोड़े स्लो जाएंगे. स्टार्टिंग विथ कैपिटल. I understand that the question besides me na the font is little small, but no, please note we have to fit this on one screen. आप आपके टेक्स्ट बुक में देख के इसको सॉल्व करो, नथिंग लाइक इट. वहाँ पे आप मार्किंग करो तो that would be in fact a lot better. So
लेट मी राइट नाउ शो यू करना क्या है हमको. वेल पोस्टिंग करना है 15 lakhs and 10 lakhs. ओके, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड ऊपर नेनी एंड काने. आई एम अज्यूमिंग कि आप लोगों ने फॉर्मेट पूरा बना लिया था. नेक्स्ट सन्ड्री डेटर्स एसेट होता है तो हमने एसेट साइड पे लिख लिया 4,50,000. देन कम सन्ड्री क्रेडिटर्स, वो एसेट नहीं होता, वो लाइबिलिटी होता है. आफ्टर अराउंड 5 लाइन्स थोड़ा नीचे 3 लाख रुपीज़. नेक्स्ट रेंट विथ एन एडजस्टमेंट, तो एक लाइन खाली रख दो, रेंट विथ एन एडजस्टमेंट P&L अकाउंट 10,000. एडजस्टमेंट वी विल डू लेटर, राइट नाउ विल जस्ट पोस्ट एवरीथिंग. नेक्स्ट स्टॉक ऑन द फर्स्ट डे, तो ये तो हो गया ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगा 5,35,500. नेक्स्ट प्रेमाइसिस एसेट होता है, प्रॉपर्टी प्रेमाइसिस. सो देर आर 3 लाइन्स यू हैव टू लीव बिलो डेटर्स, देन यू राइट प्रेमाइसिस 8,50,000. नेक्स्ट सैलरीज P&L में लिख लो, डेबिट साइड पे लिख लो, एक एडजस्टमेंट है इस पे, लीव 1 लाइन. नेक्स्ट डिस्काउंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों साइड पे, अभी तो तुमको भी दोनों साइड पे लिखना पड़ेगा. डेबिट विल गो टू द डेबिट साइड लाइक दिस, डिस्काउंट अलाउड, एंड देन क्रेडिट में लिख लो डिस्काउंट रिसीव्ड. अलाउड रिसीव्ड इज जस्ट मी एक्सप्लेनिंग लिटिल एक्स्ट्रा टू यू कि अलाउड कौन सा है, रिसीव्ड कौन सा है. आप टू डिस्काउंट बाय डिस्काउंट लिखोगे तो चलेगा, नो प्रॉब्लम्स. नेक्स्ट मोटर व्हीकल एसेट होता है तो लेट्स राइट इट इन द एसेट साइड, लीव 1 लाइन, लीव 1 लाइन 3,70,000. नेक्स्ट सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट इनर कॉलम 8,40,500. नेक्स्ट परचेसेस ऑब्वियसली ट्रेडिंग अकाउंट इनर कॉलम 6,40,500. Wages on the debit side. Okay, sorry about that. हाँ, so opening stock थोड़ा गायब हो गया था, but no problems, आ गया, don't worry. 6,40,500. तो wages आना चाहिए था 10,000. Where am I? ऑफिस एक्सपेंसेस तो P&L में लिख लेते हैं जी 20,000 ऑफिस एक्सपेंसेस. नेक्स्ट बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी साइड, सो जस्ट बिलो क्रेडिटर्स, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. रिटर्न्स क्रॉस कनेक्शन, डेबिट का क्रेडिट, क्रेडिट का डेबिट. सो डेबिट में है 5,500, आई विल राइट इन द क्रेडिट, मतलब सेल्स रिटर्न. इसके बाहर आंसर आप लिख लो 8,35,000. एंड जो क्रेडिट में है, लेट मी शो यू, दैट इज 3,500, तो वो आप डेबिट में लिख लो, परचेज रिटर्न, तो उसको माइनस करके बाहर डालो 6,37,000. ओके, नेक्स्ट returns is done. The first important item today, provident fund investment. कहाँ पे देखो, जब तक वर्कर रिटायर नहीं करता, the company can keep this money and it's a lot of money, so they invest it somewhere, so it becomes an asset. It is on the asset side, provident fund investment 8 lakhs till the time the worker does not retire. company ये investment के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकती, they cannot sell it, no, you have to keep it because whenever the worker retires, यहाँ से पैसा लगेगा ताकि पेमेंट हो सके उनका टाइम पे. आप वर्कर को रगड़ा नहीं सकते हो, नहीं 2 दिन बाद आओ, 4 दिन बाद आओ, नो, उनका पैसा था, आपको देना पड़ेगा, रेडी रखना पड़ेगा. नेक्स्ट कैश इन हैंड एसेट साइड पे, इसी के नीचे लिख लो 40,000. नेक्स्ट
प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन खर्चा होता है P&L अकाउंट डेबिट साइड। बॉस को कोई फायदा नहीं होता, ही इज फॉलोइंग द लॉ ऑफ द लैंड, जो कानून है वो फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट, प्रोविडेंट फंड अगेन कानून है हर इंडियन कंपनी के लिए। ओके, इनफैक्ट ये थ्रू आउट द वर्ल्ड दिस कॉन्सेप्ट इज फॉलोड दैट फॉर द एम्प्लॉइज हु आर पुटिंग इन देयर हार्ड वर्क, अपने जीवन का 15-20 साल वो दे देते, सम पीपल मोर देन दैट, तो उनके रिटायरमेंट का समथिंग हैज़ टू बी डन। सो ऑल थ्रू आउट द वर्ल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोविडेंट फंड सम इन अ डिफरेंट मैनर इज फॉलोड। कैश एट बैंक दैट इज ऑल्सो एन एसेट, तो इधर आ चुका है। इंटरेस्ट ऑन पीएफ कंट्री इन्वेस्टमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट, देखो इंटरेस्ट हमारा नहीं है, क्यों? क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट है वही हमारा नहीं है, वो तो वर्कर का पैसा है, इसके लिए इट्स अ लाइबिलिटी। प्रोविडेंट फंड ऑल्सो इज पेएबल एंड द इंटरेस्ट ऑन दैट इज ऑल्सो पेएबल। ओके, ऑन द फेस ऑफ इट चेहरे से पता नहीं चलता, एंड दैट इज द रीजन मेनी स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज्ड कि सर normally you say interest on investment is P&L income, that is right, but the investment has to be ours, वो पैसा हमारा होना चाहिए। यहाँ पे it is provident fund का पैसा, तो हमारा नहीं है। that is the very simple reason that I can give you. Okay, drawings, partners capital right above, Nene and Kane 20 and 15,000. next, बैड डेप, ये हमारे बन्नो फॉर्मूला में बी फॉर बैड डेप्ट एंड ओ फॉर ओल्ड आरडीडी दोनों जाएगा, तो मैं दोनों काम कर लेता हूँ। फर्स्ट लाइन में हम लोग बैड डेप्ट एंड लास्ट लाइन में हम लोग ओल्ड आरडीडी -3700। दिस इज ऑल माई ट्रायल बैलेंस। माई फर्स्ट एडजस्टमेंट इज कनेक्टेड टू रेंट, बट आई विल नॉट गिव यू अ वेरी लॉन्ग रामायण। क्यों? जरूरत नहीं है, वी हैव डन दिस मेनी टाइम्स, बट इफ यू आर समबडी न्यू, पहला बात तो मेरा सजेशन है, प्लीज वॉच द प्रीवियस लेक्चर्स बिकॉज देर इज ऑलवेज अ कंटिन्यूटी, लाइक टुडेज लेक्चर विल हैव अ कंटिन्यूएशन इन द नेक्स्ट लेक्चर। रेंट एक खर्चा है, आपने कितने टाइम के लिए दिया है? 10 मंथ्स, देखो उधर लिखा है फॉर 10 मंथ्स, तो इज दैट ओके? नहीं, गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि दिस फाइनल अकाउंट्स इज फॉर 12 मंथ्स, तो 10 महीना मतलब मैंने तो कम भरा, हाँ, तो 2 महीना ना आपको पे करना है, उसको पेएबल है कहते हैं। मतलब बेसिकली आप डील कर रहे हो आउटस्टैंडिंग के साथ, पेएबल आप डील कर रहे हो आउटस्टैंडिंग के साथ। कैसे ढूंढूं मैं 2 महीने का पेएबल? देखो भाई, आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। 10 महीने का आपको उन्होंने दिया है ना, हाँ, 10 महीने का 10,000 बोला है, तो पहले एक काम कर, वो लिख ले तू, 10 मंथ्स का 10,000। देन क्वेश्चन, आपको कितने टाइम का ढूंढना है? 2 महीने का बाकी है, चलो 2 महीने का ढूंढ लेते हैं। कितना, क्या करने का है? अरे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। ओके, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 10,000 डिवाइड बाई 10, वेरी ट्रू, आंसर आ जाएगा आपका। कितना, कोई भी कर लो यार, 2 मिनट पहले या 2 मिनट बाद आएगा, तो 2000। सो 2000 इज outstanding rent. Again, I'm not going to give a very long Ramayana because it is not necessary. There are chapters, there are in this chapter multiple questions where this has been explained to you right from scratch. Right now तो मैं ये solve कर देता हूँ by writing as an addition to rent outstanding 2000, so the outer column automatically will become 12,000. सेकेंड इफेक्ट आउटस्टैंडिंग मीन्स, मैंने बहुत बार कहा है, ओके, मुगल आज़म ने वादा किया था, ओके, तो यहाँ पर भी हमने वादा किया है कि हम पैसा, हम भाड़ा कल दे देंगे, आप कल आ जाइए, सो वो पेएबल होता है फ्यूचर में। देयरफॉर ऑन द लाइबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग रेंट 2000, डोंट राइट बाय मिस्टेक 12,000 ना, 12,000 नहीं वादा किया, आपने प्रॉमिस किया है 2 महीने का 2000। नाउ कम्स आर normal adjustments and the first one is so normal, closing stock। हाँ, तो पहले तो फैक्ट्री में लिखूंगा, उसके बाद ये क्लोजिंग स्टॉक बोलने के लिए तो क्लोजिंग है, बट जब कल दुकान खुलेगी तो कल तो काम आएगा ना, कल भी काम आएगा, परसों भी काम आएगा, तो इट इज यूजफुल इन द फ्यूचर, सो इट्स एन एसेट, वेरी सिंपल, इट इज एन एसेट, इधर और इधर। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग, अरे अभी अभी तो किया हमने रेंट, हाँ, तो एकदम सेम, वेजेस में पहले ऐड करो 3,000, बाद में सैलरीज में ऐड करना 2,000। ओके, पहले वेजेस किधर गया, देखो यहाँ पे है
चलो वेजेस में ऐड किया 3000 एंड आउटर कॉलम में 13,000। ये तो हो गया वेजेस का फर्स्ट इफेक्ट। एंड सैलरी में भी कर सकते हो, ऐड कर लो जितना उन्होंने बोला है। ओके 2000, तो यहाँ पे 3000 एंड 2000 ऐड किया। तो अभी तुमने वादा किया है कल आपको पे करना पड़ेगा। हाँ यस वेरी ट्रू, वादा किया है मैंने। कहाँ पे, मैं छुप के तो नहीं बैठ सकता, आई हैव टू पे दिस। सो फर्स्ट इज वेजेस आउटस्टैंडिंग, second is salaries outstanding. I do understand this is a little faster that I am solving this, but please note by the end of the chapter, which we are almost coming to an end, your speed cannot be kachua speed, okay? Tortoise speed नहीं हो सकता है, you have to be a little bit more faster, okay? थोड़ा boost, थोड़ा nitro use करना पड़ेगा। next, डेप्रीशिएट मोटर व्हीकल 5%। ओ नो प्रॉब्लम, मोटर व्हीकल तो हमने बहुत चलाया होगा, हमने बहुत गाड़ी घिसाई होगी, तो टायर भी घिस गए रहेंगे, तो 5% का हम लोग डेप्रीसिएशन कर लेते। हाउ मच इज 5%? सिंपल रहे 18,500। आउटर कॉलम में 3,51,500, तो 18,500 दैट इज इम्पॉर्टेंट क्योंकि उसका सेकेंड इफेक्ट आएगा। चलो P&L में कर लेते हैं बिकॉज वी यूज अ माइंड फॉर दिस। सो ऑन द डेबिट साइड एक ही लाइन में आप लिख सकते हो, एक ही लाइन में 18,500 डेप्रीसिएशन ऑन मोटर व्हीकल। ओके, सो फर्स्ट एडजस्टमेंट डन, सेकेंड एडजस्टमेंट डन, थर्ड एडजस्टमेंट डन, फोर्थ इज वेरी dear to us because to many it is not understood. Boy, it is related to bad debts. The wordings are right off, वो off को double F होना चाहिए था। Bad debt of 5,000, again it's technical भाषा। मतलब क्या है आपका? मतलब है बैड डेब्ट्स हो गया, किसने कराया? अरे डेटर ने। बैड डेब्ट डेटर ही कराता है और कोई नहीं कराता, तो चलो निकाल दो। बैड डेब्ट मतलब हमको पैसा नहीं मिलने वाला, निकाल दो। अच्छा, तो बचा हुआ तो 4,45,000 है ना। सेकेंड इफेक्ट, वो जो फॉर्मूला है ना बन्नू का, उसमें लिख ले एडिशनल बैड डेब्ट, फर्दर एडिशनल बैड डेब्ट। नाउ द डेटर्स दैट यू हैव 4,45,000, वो अच्छे लोग हैं, नहीं रे उनके ऊपर भी डाउट है। कौन बोला? देखो ना, पॉइंट नंबर 4 बोला, एंड प्रोवाइड RDD at 5% on daters, the latest daters, the latest daters. So you have a doubt because DD is doubtful debt. तो ओके अभी डाउट है तो डाउट है, माइनस करेगी because they are also the bad apple in a bunch of apples. If you have a bad apple, you will not keep it there in a bunch of kandas, batatas. If you have something bad, you will remove it क्योंकि वो बाकी को भी सड़ा देगा, तो यू हैव टू रिमूव इट। हाँ तो चलो 5% निकाल दो, 22,250। आउटर कॉलम इज 4,22,750। सेकेंड इफेक्ट ऑफ न्यू RDD इज अपना नॉर्मल फॉर्मूला। इनफैक्ट पहले 3 ऐड करो एंड देन 3,700 माइनस करो आउटर कॉलम, क्योंकि प्लीज नोट इन द इनर कॉलम कोई पूछता नहीं है, आउटर कॉलम में ही आपको मार्क्स मिलेगा। So that is 26,900, and then lastly fifth काने। ओके, आप थोड़ा अमेरिकन स्टाइल में बोलोगे तो केम, ओके हम लोग देसी स्टाइल में बोलेंगे काने। विड्रू गुड्स ऑफ 6,000 फॉर हिज पर्सनल यूज। कहाँ से उसने गुड्स लिए? फैक्ट्री से। फैक्ट्री के आजू बाजू में गोदाम होता है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो ये ऊपर है, गुड्स टेकन बाय काने फॉर पर्सनल यूज, फॉर हिज यूज, फैमिली यूज, and for him it is drawings। यूज से बट सर पहले से ही ड्राइंग से, तो क्या हो गया? खाने की मर्जी, लेने की मर्जी, क्योंकि उनका ही तो दुकान है। दे कैन टेक मंडे ट्यूसडे में थोड़ा थोड़ा माल लेके जा सकते, कोई कुछ भी, कोई अलार्म बजने वाला नहीं, क्योंकि उनके पास में चाबी है। दे आर द ओनर्स। आफ्टर आई हैव डन ऑल माई एडजस्टमेंट्स, वेरी सिंपल, my duty is to find out gross profit and then net profit। नॉर्मली तो कहानी यही रही है, gross profit, net profit। अभी देखते हैं कोई कहानी में ट्विस्ट आता है कि नहीं आता है। the debit total is 11,85,500। क्रेडिट भारी है 12,01,000 and when you subtract you don't get a very big answer, एकदम मामूली 15,500 gross profit। तो आप लोग लिख लो 15,500 ग्रॉस प्रॉफिट। पिक इट अप, यहाँ से पिकअप करो
and take it to the next page on the credit side. Now very careful, ध्यान देना, okay? थोड़ा चश्मा लगा के या नहीं चश्मा रहेगा, but pay attention. The debit total is 2,30,200, but जो credit है ना ऊपर देखो 16,450. So I think after many lectures, डेबिट का पलड़ा भारी है. डेबिट में खर्चा है, डेबिट में खर्चा है, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. सो व्हाट? सो फर्स्टली तो आई हैव टू चेंज माय पोजीशन, क्योंकि वहाँ का सीन इंपॉर्टेंट है. द डिफरेंस इज ऑन द क्रेडिट साइड. इज इट अ गुड डिफरेंस? 2,13,750? नो माय डियर, ये नुकसान है. क्यों? क्योंकि डेबिट में खर्चा है, खर्चा ज़्यादा है और कमाई बहुत कम. इसको कहते हैं नेट लॉस. नेट लॉस कौन लेगा? कौन लेगा का मतलब क्या है? ओनर्स के गले में जाएगा, नेने के गले में और काने के गले में. अच्छा, नेने के गले में कितना? अभी देखो 6:4 बोला था, तुमने 3:2 किया, तो तुम उस हिसाब से सॉल्व करो. मैं 6:4 से कर रहा हूँ. अपॉन 10 फॉर नेने आई गेट नुकसान का हिस्सा 1,28,250. प्रॉफिट हो नुकसान हो, शादी के टाइम पे जब एक नवरा नवरी को, अच्छा आई मीन वुड बी हस्बैंड टू वुड बी वाइफ प्रॉमिस करते हैं, तो द प्रॉमिसेस कि भाई खुशी में गम में, ओके, अच्छी सेहत में, तंदुरुस्ती में, बीमारी में हम साथ रहेंगे. तो यहाँ पे वैसे ही है. ओके, सो काने को कितना जाएगा? 4/10, दैट कम्स टू 85,500. प्लीज राइट दिस. इट इज a lot different, okay, from what you normally do. Very importantly note, ये जो आपको मेरे इस तरफ दिखता है, this is called as what? Debit balance. Okay, many students misunderstand करते हैं, समझते नहीं. They say, sir, when the fill in the blank says debit balance, so the option has to be, the correct option has to be net profit. No, the word balance का मतलब है वो पलड़ा भारी है, balance भारी. So when debit is भारी, that means expense is more, you get net loss. And when they say credit balance, any account, credit balance मतलब credit भारी है, income भारी है. That is, so in any chapter, when you look or hear debit balance, समझो debit भारी मतलब खर्चा भारी, loss. और अगर credit भारी है, credit balance, तो प्रॉफिट. ओके, इट्स लिटिल कंफ्यूजिंग, बट आई होप आपको ये समझा है. ओके, लेटर ऑन इन द चैप्टर आई विल ऑल्सो बी डूइंग व्हाट डू यू कॉल द ऑब्जेक्टिव्स. तो तभी मैं ये डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस का एक बार रिपीट कर लूँगा. अभी के लिए तो नेक्स्ट पेज पे जाते हैं. बाकी आई विल स्टे एट दिस पोजिशन. आई विल ट्रांसफर दिस, वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट ऑन डेबिट साइड, क्योंकि वो क्रेडिट था ना, पहले बाई था, तो अभी 2 में होना चाहिए. ये थोड़ा इट्स अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू आर डूइंग. व्हाट हैपेंस, स्टूडेंट्स लोग बाय कर लेते, अरे उधर 2, इधर बाय, इधर बाय, इधर 2. नो, जिधर 2 आया उसका ऑपोजिट बाय आएगा. हाँ, नेने का क्रेडिट भारी है 15 lakhs. द डिफरेंस ऑन द डेबिट साइड इज 13,51,750. काने का क्रेडिट भारी है 10 lakhs. द डिफरेंस ऑन द डेबिट साइड 8,93,500. This is balance, closing balance. This will go to the balance sheet. So let me transfer the closing capital to the balance sheet of Nene and Kane. Total बाहर डाल देंगे, which is 22,45,250. Okay, you can pause, you can write everything, and थोड़ा थोड़ा प्रेयर, थोड़ी थोड़ी मेहनत, पूरा पूरा सम हमारा सही आना चाहिए. So the liability total and the asset total, obviously after so much of mehnat, has to match, and it comes to 30,24,250, which obviously is happening on both the sides. Today's main mudda kya tha? Provident fund, which I hope the 4 different angles, the wordings. Now if you are wondering, sir, every sum may you get all the 4 items? No, maybe in some sums you get only 2, in some sums you only get provident fund contribution, तो वो PNL account में चला जाएगा.
तो वो मैं तो गारंटी नहीं कर सकता, बिकॉज दैट इज़ व्हाट दी एग्जामिनर के मूड पे डिपेंड करता है कि वो क्वेश्चन में क्या मांगेगा। मैंने चारों आपको पढ़ा दी, इनफैक्ट आने वाले लेक्चर में एक और बार मैं आपको वो याद दिला दूंगा। सो इफ़ यू हैव अंडरस्टूड दी एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, तो आपको क्या करना है? वेल, लाइक कर दीजिए, इट डज एनकरेज अस अ लॉट। सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, बेल आइकन नहीं दबाया दबा दीजिए। ये चैनल के बारे में और ये चैनल पे अवेलेबल लेक्चर्स के बारे में जो फ्री है सबको आप बताइए। दैट वुड बी माइटी हेल्प टू एवरीबडी हु इज़ रनिंग दिस पर्टिकुलर सेटअप। ओके, टिल द टाइम वी मीट अगेन, आप कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपके पास कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, होपफुली वो ये वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन के साथ में जुड़ा हुआ होना चाहिए। ओके, तो थोड़ा बेहतर होता है कि जो क्वेश्चन का वीडियो ऊपर बनाया गया है उसी के नीचे उसके डाउट्स या क्वेश्चंस डाले गए हैं। ओके, आपके पास कोई सजेशंस रहेगी तो हमारे लिए तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। वी विल डू आवर बेस्ट टू इनकॉर्पोरेट द गुड सजेशंस इन आवर अपकमिंग लेक्चर वीडियोस। टिल द टाइम वी मीट अगेन, अपना ख्याल रखिए, अपने बड़ों का, अपने छोटों का, अपने परिवार वालों का, सभी का ख्याल रखिए। स्टे सेफ, इफ पॉसिबल स्टे इनडोर्स। गुड डे टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस, बाय।